Jai Hind everyone, how are you all? Hope you all are fine and enjoying at your homes. Chaliye, we are back again with another chapter. But before starting the chapter, as usual, we have to recite the shloka. So all of you be ready for the shloka. Om Sarve Bhavantu Sukhinah सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. चलिए, so today we have to start with our chapter number 5, that is India Wins Freedom. Before that, in our previous session, we have completed our chapter number 4, that is Freedom Struggle before Mahatma Gandhi. In that chapter, we discussed what happened after the revolt of 1857 till the time when Mahatma Gandhi enters to the politics, to the freedom struggle of India, that we have discussed in our chapter number 4, that is freedom struggle before Mahatma Gandhi. So in that we have discussed that INC was formed. INC का formation हो चुका था. Bengal was divided into two parts, East Bengal and West Bengal. After that, Swadeshi movement was started and it was crushed. After that, the First World War was started. And because of First World War, India's freedom was just like nothing. इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो एक तरीके से स्टॉप हो गई थी. नाउ many of the evils such as सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सबको सोसाइटी से काफ़ी हद तक रिमूव किया जा चुका था. And casteism, still it was exist in the society. There were many social workers who were continuously working for removing these evils, but जो casteism था वो अभी भी हमारी सोसाइटी में था. चलिए, now in this chapter we will discuss the time period from 1915 to 1947. 1915 से लेकर 1947 when we got freedom, when India got freedom. Okay, so before starting the chapter, let's gear up. Okay, look the given picture and complete the following statement. See, आपको एक picture दी है. As you know, this is the picture of चरखा. तो आपको ये picture देखकर ये sentences को complete करना है. I know you all know the answers very well. The national leader associated with the चरखा was, वो national leader जो चरखा से एसोसिएटेड है, जिन्हें चरखा से जाना जाता है, दैट इज यस राइट, महात्मा गांधी. ही इज पॉपुलरली नोन एज, उन्हें ज्यादातर प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? यस राइट, ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू. हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एज, उनका जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है उसे किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? एज गांधी जयंती. चलिए, वेरी गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट वेरी फास्ट. सी, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर रिवोल्यूशनरी गदर पार्टी का इंट्रोडक्शन हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बाद जो इंडिया की फ्रीडम फाइट थी वो एक तरीके से स्टॉप हो गई थी. बिकॉज इन दैट फाइट इंडिया वॉज हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स. इंडिया, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी तो इंडिया को भी ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी पड़ी टू विन द फाइट. नाउ इन 1915 व्हाट हैपेंड? In 1915 Mahatma Gandhi, who is his real name is actually Mohandas Karamchand Gandhi, that too everyone knows and you all know it very well, I know that, but still.
Okay, so Mohandas Karamchand Gandhi, or you can say Mahatma Gandhi, he came to India after completing his studies, his law, and this was a time when he actively take part in the politics of India, in the freedom struggle of India. And what happened after that, that we will study in this chapter. Let's start what is given over here. India's struggle for freedom is a story of courage and sacrifice. Yes, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये एक करेज मीन्स बहादुरी और सेक्रीफाइस दैट मीन्स बलिदान, बहादुरी और बलिदान से भरी हुई है। बिकॉज हमारे जितने भी लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके करेज और उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही आज हमारी कंट्री फ्री है, आज हम आज़ाद हैं, आज हम इंडिपेंडेंट हैं। सो अगर वो नहीं होते, उनका करेज नहीं होता, उनका सेक्रीफाइस नहीं होता, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की जस्ट बिकॉज कि आज हम एक फ्री कंट्री में जी रहे हैं, वो सिर्फ उनके सेक्रीफाइस, उनके करेज की वजह से। तो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इट्स अ ग्रेट 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 स्टोरी ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस of our freedom fighters, of our leaders. The Indian freedom struggle took a definite shape after Mohandas Karamchand Gandhi entered the political scene. Yes, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बाद एक तरीके से स्टॉप हो गई थी, उसको एक नई शेप मिली आफ्टर Mohandas Karamchand Gandhi, that is Mahatma Gandhi, when he came to India and entered the politics. जब वो इंडिया में वापस आए और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया, आफ्टर दैट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इट गेट्स अ डेफिनेट शेप, पर्टिकुलर शेप. He studied law in England and went to South Africa to practice it. उन्होंने अपना जो लॉ है, कानून, इंग्लैंड में पढ़ा और उसे प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए. There he noticed and experienced racial discrimination on the basis of skin color. Racial discrimination, it's a type of social evil. Means racial, means races में कलर के बेसिस पर डिफरेंस किया जाता था. वाइट स्किन कलर, ब्लैक स्किन कलर, उनको अलग अलग समझा जाता था. दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दैट वाज आल्सो नोन एज अपार्थेड. इसे अपार्थेड भी कहते हैं इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में इसे अपार्थेड भी कहा जाता है. तो वहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ये जो एक एविल था विच इज डिपेंड ऑन द स्किन कलर, कि बिकॉज कि साउथ अफ्रीका वाज एट दैट टाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. साउथ अफ्रीका भी उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था. तो वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था, छोटा समझा जाता था इन फ्रंट ऑफ द वाइट स्किन पीपल हु वर द ब्रिटिशर्स. सो वहाँ के जो ब्लैक स्किन पीपल थे उन्हें कोई राइट नहीं दिया जाता था. उनके साथ उतना ही इल ट्रीटमेंट किया जाता था जितना कि शायद इंडिया में भी हमारे फार्मर्स या क्राफ्ट पर्सन्स के साथ किया जाता था. तो उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया जाता था. दैट वॉज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. आप इसे हिंदी में रंग भेद भी कह सकते हैं. रंग के आधार पर भेद करना, मतलब लोगों में डिफरेंस करना. दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. He raised his voice against this injustice and demanded equality. उन्होंने अपनी आवाज उठाई इस इनजस्टिस, मतलब जो कि सही नहीं हो रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज उठाई और लोगों के लिए इक्वालिटी डिमांड की. एट दैट टाइम अफ्रीका में भी एक कांग्रेस पार्टी थी. इट वॉज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विच वॉज लीडेड बाय नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला जी भी एक कांग्रेस पार्टी चला रहे थे वहां पर. उनकी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसे लीड कर रहे थे नेल्सन मंडेला. वो भी वहां पर इसी एविल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम ब्रिटिशर्स.
So Mahatma Gandhi also helped him and his party to get rid from this racial discrimination. Mahatma Gandhi's struggle eventually bore fruit. तो उनके और नेल्सन मंडेला ने साथ में मिलकर जो भी वहाँ पे वर्क किया कि वहाँ के लोगों के साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रंग भेद किया जाता था, वाइट स्किन पीपल्स जो होते थे उन्हें सुपीरियर समझा जाता था और ब्लैक स्किन को इंफीरियर समझा जाता था, तो ये चीज़ को ख़त्म करने में काफ़ी उन्होंने हेल्प की और इस वजह से वहाँ से अपार्थाइड ये रिमूव हो गया. The British were forced to concede to his demand. ब्रिटिशर्स को फोर्स होना पड़ा, मजबूर होकर उनकी डिमांड्स को मानना पड़ा और साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ा. ओके, आफ्टर दैट महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915. महात्मा गांधी 1915 में भारत आए. He visited various parts of the country to understand the problem faced by the people and the condition of the Indian society. So at that time when he returned to India, he realized कि India is under the control of Britishers और India में Indians को ही exploit किया जाता है. तो उन्होंने country के बहुत सारे parts को visit किया टू रियलाइज कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर इंडियंस फेस करते हैं या उनकी क्या क्या कंडीशंस है, कैसी प्रॉब्लम्स है, वो सब जानने के लिए उन्होंने कंट्री के कई हिस्सों में विजिट किया. He was shocked to see that Indians were treated unequally in their own country. उनको ये देख के बहुत हैरानी हुई कि इंडियंस को उनकी अपनी ही कंट्री में बैड इल ट्रीट किया जाता था. दैट मीन्स उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, दे वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. इंडियंस को उनकी अपनी ही कंट्री में उनके साथ गलत बिहेव किया जाता था. ये देखकर, ये जानकर उनको काफी हर्ट हुआ एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड ऑल्सो. So what he did after? Social evil such as the caste system kept people divided and backward. As I told you earlier कि कास्टिज्म जो एक एविल थी वो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी. सती प्रथा को बैन कर दिया गया, चाइल्ड मैरिज भी अबॉलिश हो गई, बट जो कास्टिज्म था, कास्ट के बेसिस पर डिफरेंस करना कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये सुपीरियर है, मतलब ये सुपीरियर लोग हैं, ये इंफीरियर लोग हैं, तो ये चीज़ अभी भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉलो अप की जाती थी कि जो इंफीरियर्स होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं, उन्हें अपर कास्ट के साथ खड़े होने की भी परमिशन नहीं होती थी. ऐसा भी होता था हमारी कंट्री में. तो महात्मा गांधी जी ने रियलाइज किया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा देश फेस कर रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम की वजह से लोग आपस में ही इक्वल नहीं है, तो कोई दूसरा तो आराम से हमें कंट्रोल कर ही सकता है ना. सो ही डिसाइडेड टू यूनाइट द पीपल फर्स्ट. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पहले मुझे सभी हमारे इंडियंस को, सभी भारतीयों को एक साथ लाना है. हमने लास्ट भी ये पढ़ा था कि जो 1857 का रिवॉल्ट था उसके डिस्ट्रॉय होने के, उसके क्रैश होने के, सबसे उसके फेलियर के जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि पूरा इंडिया यूनाइटेड नहीं था. अगर पूरा इंडिया यूनाइटेड होता, एक साथ खड़ा होता, तो ब्रिटिशर्स को एट दैट मोमेंट इंडिया को रिवील करना ही पड़ता, इंडिया को फ्री करना ही पड़ता. बट बिकॉज कि इंडियंस आपस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए थे, वो खुद ही यूनाइटेड नहीं थे, इसीलिए हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो हम नहीं जीत पाए थे. तो गांधी जी ने रियलाइज किया कि सबसे पहले सभी इंडियंस को यूनाइट करना पड़ेगा, उसके बिना हम हमारा फ्रीडम स्ट्रगल नहीं जीत सकते. His experience gained from South Africa came in handy. That
was the thing he did in South Africa. साउथ अफ्रीका में हमने अभी डिस्कस किया था कि उन्होंने अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज किया था एंड ही सक्सीडेड. तो वहां पे उन्होंने लोगों को इक्वालिटी का मतलब समझाया था और उनके बीच में इक्वालिटी को क्रिएट किया था. सो सेम वही थिंग अब उन्होंने इंडिया में भी शुरू किया. लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती. वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल हैव सेम इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वी आर नॉट सुपीरियर एंड इंफीरियर, वी आर इक्वल. He also took an active part in freedom movement of the country. उसके बाद उन्होंने हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अपना एक्टिव पार्ट लिया. अभी तक तो वो क्या थे, मतलब बैक साइड से वर्क कर रहे थे. अब वो एक्टिवली फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किए. The year 1915 was a turning point in India's struggle for freedom. जो 1915 का ईयर है इसे एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है बिकॉज कि महात्मा गांधी इन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया एंड देन ही स्टार्टेड यूनाइटिंग द पीपल, जो कि सबसे मेन रीजन था कि इंडिया अपना फ्रीडम स्ट्रगल जीत सकती थी. तो उन्होंने लोगों को रीयूनाइट करना शुरू किया. महात्मा गांधी फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद. महात्मा गांधी ने सबसे पहले अहमदाबाद में एक आश्रम शुरू किया विच इज सत्याग्रह आश्रम. सी यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ सत्याग्रह आश्रम ऑल्सो. Many of you I think have visited it also. Those who haven't visited, please go and visit. Okay. In December 1916, he also attended the Lucknow session of Indian National Congress. इसके बाद दिसंबर 1916 में उन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक सेशन अटेंड किया जो कि लखनऊ में हुआ था. उसके बाद इन्होंने एक्टिवली INC को ज्वाइन किया. He became one of the leader of INC. Okay. Now we will discuss about the principles of महात्मा गांधी, कि उनके क्या प्रिंसिपल्स थे जिनके जरिए उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने क्या क्या किया फॉर गेटिंग फ्रीडम फॉर इंडिया. दैट वी विल डिस्कस इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सत्याग्रह. महात्मा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह. एज वी नो कि सत्याग्रह जो था वो उनका एक प्रिंसिपल था विच इज मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज सत्य एंड आग्रह. सत्य दैट मीन्स ट्रूथ और आग्रह दैट मीन्स इंसिस्ट, किसी को इंसिस्ट करना, किसी को बार बार किसी बात को कहना, दैट इज इंसिस्ट, आग्रह. The word satyagraha is actually made up of two words, satya and agraha. Satya means truth and agraha means to insist. Satya that means truth, सच्चाई, और आग्रह that means insist करना, किसी को एक ही बात को बार बार रिपीट करना, repeatedly कहना, that is आग्रह. Together they mean instance on the right demands of the पीपल. इन दोनों का एक साथ क्या मतलब होता था कि लोगों की जो सही डिमांड है कि ये चीज होनी चाहिए, उनको उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है वो गलत है, उसके खिलाफ उन्हें खड़ा होना चाहिए. तो अपने अधिकार के लिए खड़ा होना, दैट वो चीज सत्याग्रह कहलाती थी. अ सत्याग्रही इज वन हु फॉलोज सत्याग्रह and sticks to what is right. एक सत्याग्रही, the person, सत्याग्रही, किसे सत्याग्रही कहा जाता था? एक पर्सन जो हमेशा सच कहता था, सत्याग्रह के लिए, सत्य सच के लिए आग्रह करता था, बार बार सच कहता था और अपने सच से कभी पीछे नहीं हटता था चाहे कुछ भी हो जाए. Always he stand with the truth. He should be prepared for any sacrifice.
उसे किसी भी सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना पड़ता था, फिर चाहे उसे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े, बट वो अपने ट्रुथ से पीछे नहीं हटता था। दैट पर्सन वॉज नॉन एज सत्याग्रही। महात्मा गांधी हैड फेथ इन सत्याग्रह एंड अहिंसा। ये उनके दो प्रिंसिपल थे, दैट तो वी नो वेरी वेल। महात्मा गांधी जी के दो प्रिंसिपल थे, एक था सत्याग्रह, दैट मीन्स सत्य के लिए आग्रह, सच्चाई के लिए बार बार सच्चाई को बार बार कहना, उसे बार बार इंसिस्ट करना, और दूसरा अहिंसा, दैट मीन्स नॉन वायलेंस। अगर आप सच बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला अगर आपका सच नहीं सुन रहा है तो आप उसको उठा के डंडे की दो लगाओगे कि हाँ नहीं मैं सही बोल रहा हूं, नहीं। उनका जो प्रिंसिपल था वो था सत्याग्रह, कि हमेशा सच बोलो, सच के लिए खड़े रहो, एंड नॉन वायलेंस, कभी भी वायलेंस मारपीट नहीं करो। ये उनके दो प्रिंसिपल्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को मैनेज किया, जिनके बेसिस पर उन्होंने पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव पार्ट लिया।